video of sequence and series. Today we are going to start geometric progression. तो पहली चीज़ geometric progression होता क्या है, एक ऐसा sequence जिसके अंदर जो ratios of the terms यानी कि suppose A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन करके टर्म्स हैं एक सीक्वेंस में. अगर मैं A2 को A1 से डिवाइड करूं, फिर A3 को A2 से डिवाइड करूं, फिर A4 को A3 से डिवाइड करूं एंड सो ऑन, और मेरे पास सेम रेशियो आए which is known as common ratio, which is denoted by the symbol R, then we see that the series is a sequence is a geometric progression. Alright, so this is what is the meaning of geometric progression. या मैं ऐसे ये भी लिख सकती हूँ अगर जनरल टर्म में लिखना चाहूँ कि a k plus 1 upon a k equals to r, the way it is mentioned in your book. A sequence is called a geometric progression in case each term is non-zero. Obviously non-zero होना mandatory है क्योंकि अगर zero हो जाएगा तो something divided by zero is not defined, right? So वो एक गलत notation हो जाएगी. So that is why suppose the first term is denoted by a children, then the second term will be ar. चेक करो ar upon a cancel होके r आ गया. फिर अगला term will be ar square. Again ar square divided by ar will again give you what? R only. A cancel, r cancel. Next term will be ar cube upon ar square. Right, so अगला term ar cube हो जाएगा. So can I say that the nth term of a GP is AR n to the power n minus 1. R की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? n minus 1 होना चाहिए. चेक करो फर्स्ट वाली टर्म में R की पावर 0 है क्योंकि 1 minus 1 0 हो गया. सेकेंड टर्म में R की पावर 1 है, यानी कि हर टर्म जब मैं नंबर ऑफ टर्म की बात करूंगी तो R की पावर उससे एक कम है. फर्स्ट टर्म में R0, second term में R1, third term में R2 and so on. This is what is a GP. Okay. So this is the first formula which you should know. What is the general term of a GP जो कि मैंने आपको already लिखवा ही दिया. Again there can be finite and infinite terms in a GP. Suppose करिए there are finite terms यानी कि n terms of a GP. So formula AR plus AR square plus dot 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 AR to the power n minus 1, क्योंकि nth term of a GP is represented by this. So this gives, this is Sn equals to A 1 minus R की power n upon 1 minus R. Either this is the formula if R is children less than 1, और अगर value of R greater than 1 है, greater than equal to 1 है, so this one is the formula. Here R is greater than equal to 1. So this is the two formulas of nth term of a GP. Similarly अगर आप बात करोगे infinite terms of a GP की, so formula is A, 1 minute, let me show you the formula. Alright, it might be in the, but let me just tell you कि if we talk about infinite terms of a GP जिसमें last term कुछ नहीं होती, तो formula हो जाता है sum to infinite terms of a GP is A upon 1 minus R. Right, again where R is, अगर R is, here R is less than 1 and A R minus 1 where R is greater than equal to 1. This is formula of sum to infinite terms of a GP. Similarly, let's talk about geometric mean. जैसे हमने arithmetic mean की बात करी थी. Arithmetic mean क्या था? Under root of AB. Arithmetic mean हमने सीखा था दो numbers के बीच में is the average of the two numbers. Geometric mean is under root of AB to the power 1 by 2. That is known as geometric mean of this. Now there is a very interesting question जो पेपर में पूछा जाता है
कि आप AM और GM को रिलेट करो. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन AM एंड GM? Let me show you the relation between AM and GM and tell you how it is derived, because इसका derivation आ सकता है. AM is always greater than equal to GM. कैसे आता है ये देखते हैं. Suppose let AM be denoted by A and GM be denoted by G. So हमें पता है A जो है वो A plus B by 2 है और G जो है वो अंडर रूट ऑफ AB है. तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं यानी कि डिफरेंस फाइंड करूं, सो A माइनस जी इज A प्लस B बाई 2 minus root AB. Let me take LCM and can I write this as A plus B minus 2 root AB, children? Now look here. Can I write A as root A का square and B as root B का square minus 2 into, can I write this as root A into root B? राइट, रूट ए बी को ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 2. अब चेक करो, न्यूमिरेटर हो गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में 2 है ही. तो चेक करो 2 तो हमेशा पॉजिटिव ही है क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है. और जो न्यूमिरेटर है वो भी होल स्क्वायर आ गया. दैट मीन्स ऑब्वियसली न्यूमिरेटर भी पॉजिटिव आएगा. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, वो 0 आ सकता है अगर बाई चांस ए एंड बी इक्वल आ गए. Right, so can I say A minus G is greater than equal to 0? That is A is greater than equal to G. So this is how we will prove that AM जो होता है वो GM से हमेशा हमेशा बड़ा होता है when we talk about any two positive numbers. Right, children? So this is basic knowledge of GP, मतलब GP which you should have. Okay. Let's talk about exercise 9.3. First question. Again, same simple logic. हमें 20th term A given है 5/2. R हमें फाइंड करना आता है A2 अपॉन A1 यानी कि 5/4 अपॉन 5/2. ये मिस्टेक नहीं करनी है. 5/4 इंटू फ्रैक्शन के नीचे जो फ्रैक्शन होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है. 2/5 5 cancel, 2 ones. R is what? 1/2. R 1/2 आ गया, A हो गया. अब हमें क्या निकालना है, nth term. So A nth of a GP, A R to the power n minus 1. So ये हो गया 5/2 into 1/2 raised to power n minus 1. अब ये तो आगे सॉल्व नहीं हो सकती, इसे छोड़ दीजिए. A 20th क्या हो जाएगा, A 20th हो जाएगा A R to the power 19 यानी कि 5 डिनोमिनेटर में 2 की पावर 19 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 20. That's your answer for that is your answer for the first question. All right, children. तो क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल हैं इस एक्सरसाइज के, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होंगे वो आई विल लेट यू नो. लेट मी डू क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू. 2 क्या कहता है? 2 कहता है 12th टर्म ऑफ अ जीपी. अगेन 12th टर्म मीन्स ए आर की पावर कितनी, 11, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू द पावर n minus 1 इज nth टर्म ऑफ अ जीपी. सो 12th टर्म इज 100 नहीं, फाइंड द 12th टर्म उसने बोला है, फाइंड करनी है 12th टर्म, क्वेश्चन मार्क. इफ whose 8th term means A R to the power 7 is 192 and common ratio यानी कि R is 2. तो A तो आ गया 192 upon R by 7 यानी कि 2 to the power 7. This is the value of A. Right, children? अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 12th टर्म यानी कि A R to the power 11. A है 192 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 11. आई होप आपको याद होगा, जब बेसिस सेम होते हैं एक्सपोनेंट्स का रूल, डिविजन के अंदर पावर सब्ट्रैक्ट यानी कि 11 minus 7 हो जाएगा.
So 192 into 2 की power 3 plus 1 4, right? 3 की power 2 की power 4 हो गया. So 192 into 2 की power 4 is your answer for the 12th term. Obviously जो कि आपको आराम से कैलकुलेट करनी आती है. जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? 3072. You can check your answer. Let's move ahead. Question number 3. Question number 3 again same formula पे ऊपर based. If 11th term 5th term यानी कि a r to the power 4 क्योंकि 5th term की बात हो रही है is p. 8th term a r to the power 7 is q and 11th term a r to the power 10 is s. Show that q square equals to ps. ये शो करना है. अगेन ये सिंपल है. सबसे पहले LHS देख लेते हैं क्या आएगा. q का स्क्वायर यानी कि a r की पावर 7 का स्क्वायर. चेक करो क्या आएगा. a स्क्वायर पावर के ऊपर पावर मतलब पावर मल्टीप्लाई. 7 2 ज़ा 14. इसे यहीं छोड़ देते हैं. RHS करते हैं. RHS क्या है? p इंटू एस. p क्या है? ए आर की पावर 4 इंटू एस क्या है? ए आर की पावर 10. अगेन बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी. ए का पावर 1 प्लस 1 2 आर 4 प्लस 10 14. चेक करो क्या LHS इक्वल टू RHS है? यस है. सो हेंस प्रूव. दैट्स क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ टर्म ऑफ एन GP यानी कि A4 इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म का स्क्वायर है एंड द फर्स्ट टर्म इज -3. फाइंड द सेवेंथ टर्म. सेवेंथ टर्म मतलब हमें एक्चुअली में ए आर की पावर 6 फाइंड करनी है. फोर्थ टर्म मतलब ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू ए टू क्या है? ए टू द ए इंटू आर का होल स्क्वायर. तो ए आर की पावर 3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर. तो चेक करो क्या आया. एक ए और एक ए कैंसिल. आर स्क्वायर के साथ ये कैंसिल यानी कि ए इक्वल्स टू आर आ गया. राइट. सो आर की वैल्यू भी -3 आ गई. तो चेक करो हमारे पास आंसर क्या आया फोर्थ क्वेश्चन का. हमें सेवेंथ वो निकालनी है. -3 की पावर 6 यानी कि मेरे पास आंसर आया -3 की पावर 7 जो कि आया -2187. That's my answer for question number 4. So questions are pretty easy. I will tell you till which point the questions are easy. Okay. आगे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. फिफ्थ क्वेश्चन. अगेन फिफ्थ क्वेश्चन सेम है. विच टर्म सारे मतलब a की वैल्यू दी है 2. अगेन आपको देखते ही पता चल जाएगा क्योंकि डिवीजन जैसे ही करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इक्वल. तो वो GP है. पता चल जाना चाहिए. सो 2√2 अपॉन 2 इज √2. राइट. एंड विच टर्म यानी कि a टू द पावर n a nth इज 128. अगेन a r टू द पावर n-1 कितना गिवन है? 128. a की जगह 2 r की जगह √2 रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू 128. अगेन क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा. 2 की पावर 1 और इसको 2 की पावर n-1/2 लिख सकते हैं और 128 को 2 की पावर 7 लिख सकते हैं. तो नीचे 1 प्लस जब मल्टीप्लिकेशन तो पावर ऐड. सो ज़्यादातर एक्सपोनेंट्स का लॉजिक लग रहा है बेटा. Now when the bases are same equal to sin s, so powers can be equated, right? दोनों बेस सेम थे. So 1 plus n-1/2 is equal to 7. Take LCM and then take 2 7. 2 plus n-1 is equal to 7 2s are 14. So this is 1. So n की वैल्यू कितनी आ गई? n is 13. Right? That is question number 5 for you. Similarly B part भी ऐसे ही करना है. A गिवन है √3. R आ जाएगा 3 अपॉन √3. ओके. थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? √3 आएगा. राइट. और अगेन a nth इज 729.
Again, a r to the power n minus 1 is 7 to 9 children. So a is root 3. R is also root 3 raised to power n minus 1 is equal to 729 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 6 हाँ 9 सो पावर अगेन ऐड हो जाएंगी n minus 1 प्लस 1 अपॉन 2 क्यों क्योंकि रूट था राइट इक्वल्स टू 3 की पावर 6 तो ये और ये कट गया n की वैल्यू कितनी आ गई 6 2s are 12 सो दैट इज b पार्ट सिमिलरली c पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा a की वैल्यू 1/3 r की वैल्यू 1/9 अपॉन 1/3 फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन तो जो नीचे वाली फ्रैक्शन वो रेसिप्रोकल हो जाएगी 3 1s are 3 3s are so r is 1/3 a given है r given है again same a nth equals to 1,19683 so क्या लिख सकते हो इसे a r to the power n minus 1 is equal to 1/3 ये 3 की पावर 9 होता है राइट सो a क्या है a is 1/3 r is also 1/3 raised to power n minus 1 is equal to 1/3 raised to power 9 so क्या आ गया 1/3 n क्योंकि पावर ऐड हो गई 1 और 1 कैंसिल हो गया is equal to 1/3 to the power 9 so n की वैल्यू क्या आ गई n की वैल्यू 9 आ गई that is the third part सिक्स्थ पार्ट करते हैं for what value of x the numbers are in GP again numbers are in GP मतलब x upon minus 2/7 second term upon first term is equal to minus 7/2 upon x तो चेक करो can I say x square अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ x square is equal to minus 7/2 into minus 2/7 7 7 cancel 2 2 cancel minus minus plus so x is equal to root 1 children now x is equal to root 1 का मतलब क्या हुआ x is plus minus 1 so x can have both the values positive as well as negative under root है इसलिए and both the values will satisfy right so याद रखना है can I also say suppose करो तीन नंबर्स अगर जीपी में होते हैं यानी कि ए बी सी आर इन जीपी सो बी बाय ए इक्वल्स टू सी बाय बी सो यू गेट अ शॉर्टकट हियर दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मतलब सेंटर मोस्ट नंबर का जो स्क्वायर है वो एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है दिस इज अ शॉर्टकट विच यू कैन यूज इन अ दिस कैन बी अ 1 marker hot question higher order thinking skill question which can come in your examination children all right question number 7 8 9 and 10 are all I mean same क्यों क्योंकि आपको अगेन सारे में सम टू एन टर्म्स निकालना है जीपी का जैसे पहले में एस सम टू 20 टर्म्स निकालना है राइट ए अब मैं डायरेक्टली लिख लूँ ए जो है वो 0.15 है और आर जो है वो this upon this यानी कि 0.015 upon 0.15 राइट ये आर आ जाएगा यानी कि आर की वैल्यू 0.1 आ गई अब आर अगर ये 1 से छोटा है तो सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला जो यूज होगा वो क्या होगा 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा सिंस आर इज लेस दैन 1 राइट सो यू हैव टू रिमेंबर सो ए क्या है 0.15 1 माइनस आर क्या है 0.1 की पावर n अब n इन्होंने 20 गिवन है अपॉन 1 माइनस 0.1 सो अगेन आंसर पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है पॉइंट अगर हटाएंगे तो 0.15 अपॉन 0.9 और अंदर 1 माइनस 0.1 रेज टू पावर 20 इसे एज इट इज़ रहने दीजिएगा देयर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट राइट जस्ट कैलकुलेट सिंप्लीफाई दिस तो दिस विल बी 1/20
6. 1 minus 0.1 raised to power 20. That's it. That's your answer. 7th question. Similarly 8th question करते हैं. Again a given है, √7, r आ जाएगा √21 by √7, यानी कि कितना आ गया r आ गया हमारा चिल्ड्रन √3. अगेन टिल n टर्म्स निकालना है, so sum to n terms. Again formula a 1 minus r की power n upon 1 minus r. Why? Because now r is √3. √3 is 1 point something, right? So we will use the formula of r sum to n terms, where r is, see there are two formulas children, a r to the power n minus 1 upon r minus 1. हालांकि दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम ही आएगा. एक में मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लेके ये निकाला है ताकि नोटेशन थोड़ी देखने में प्रॉपर लगे, राइट? सो यू यूज वॉट एवर फॉर्मूला, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट जनरली दिस शुड, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.7 होती है, राइट, अप्रॉक्सीमेट. सो पुट द वैल्यूज. दिस इज √7, r is √3 raised to power n minus 1 upon √3 minus 1. If you want to rationalize it, you can rationalize it. This is √3 raised to power n minus 1 into √3 plus 1 upon 3 minus 1, that is 2. That's your answer for question number 8. Similarly question number 9 करते हैं. Again a जो है वो 1 है, r जो है वो minus a by 1, right? minus a by 1 यानी कि minus a है. Again sum to n terms निकालना है. a again चेक कर लीजिए, r जो है वो लेस है, नेगेटिव है. So r this is 1 minus r की पावर n upon 1 minus r. वैल्यू पुट करिए. 1 minus a raised to power n upon 1 minus a. There is no need to 1 minus of minus a, right, which will be plus a. So that is your answer for question number 9. Similarly 10 अगर करोगे तो 10 में भी यही है, a x cube है. Now r is what? x by 5 upon x cube, right? That is x square. Again just use the formula sum to n terms. Now here you can use whatever formula, r to the power n upon 1 minus r, whatever notation, because we don't know कि x जो है वो क्या है, greater है या less है. So that is why just leave your answer like this, raised to power n upon 1 minus x square. r is x square. That is question number 10 for you. Now question number 11 करते हैं. 11 में थोड़ी सी गलती हो जाती है, बच्चों को ना समेशन नहीं समझ में आता. तो समेशन मीन्स सम सीरीज ओपन करना, यानी कि 2 plus 3 की पावर 0, सॉरी पहले 3 की पावर 1, r के जो है वो कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ लिखा हुआ है 1 से, प्लस 2 plus 3 की पावर 2 प्लस 2 plus 3 की पावर 3, एंड पूरा नहीं लिख रही हूँ, सीधा लास्ट 11th टर्म 2 plus 3 की पावर 11. सो अब चेक करिए, जो 2 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा, 11 टाइम्स. कैसे? 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे डॉट 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 करके टोटल मैंने 11 टर्म्स लिखे, तो 11 टाइम्स 2 रिपीट हो गया, प्लस 3 to the power 1. अब ये तो आपको क्लियरली जीपी दिख ही रहा है, राइट? 11 टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला. सो ये तो 22 हो गया, प्लस a, अब इसमें r जो है वो 3 है, राइट, यानी कि ग्रेटर देन 1 है. सो 3 to the power 1 यानी कि n, यानी कि 11 minus 1 upon 3 minus 1.
राइट. सो दिस इज 22. आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. 3 की पावर 11 माइनस 1/2. दैट इज़ योर आंसर. ऑल राइट चिल्ड्रन. सो समेशन क्लियर हो जाना चाहिए. आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 पर कहता है सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी. आप चेक करो. इसमें थोड़ा सा आपको टाइप, जनरली जब हम जीपी की बात करते हैं तो ए आर स्क्वायर ऐसे लेते हैं, लेकिन इसमें मैं एक शॉर्टकट यूज करने वाली हूँ. लेट आई विल टेल यू व्हाई आई हैव यूज्ड इट. 3 टर्म्स of GP be A by R, A and AR. Okay, I will tell you why I have used it. Now आगे क्वेश्चन करते हैं. Sum of the 3 terms यानी कि A by R plus A plus AR equals to कितना है 39/10. ये पहली इक्वेशन. and their product AR into A into AR equals to 1. अब चेक करो. अब आपको दिखेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया. A क्यूब इज इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई. सिर्फ रियल रूट्स कंसिडर करेंगे. सो A की वैल्यू 1 आ जाएगी. जैसे ही A की वैल्यू 1 आ गई उसको इसमें पुट कर दीजिए. राइट, पुट इन 1. सो मेरे पास क्या आ गया 1/R प्लस 1 प्लस R इक्वल्स टू 39/10. ज़रा एलसीएम ले लीजिए तो क्या आएगा 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू 39/10. चिल्ड्रन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी परफेक्ट वाली. 10R स्क्वायर प्लस 10R प्लस 10 इक्वल्स टू 39R. सो 10R स्क्वायर, this is 10R square minus 29R plus 10 equals to 0. अब 100 के फैक्टर्स ताकि 29 आए. सो क्या आया 10R स्क्वायर माइनस 25R माइनस 4R इक्वल टू 0. राइट, अब आपका आ गया. R जो है वो कितना आया 2/5 भी आ गया और R 5/2 भी आ गया. 2 रूट्स आएंगी ना जब आप सॉल्व करोगे. और इसका मतलब जो आपकी जीपी है, व्हाट आर योर टर्म्स ऑफ जीपी दैट यू कैन टेक. योर टर्म्स ऑफ जीपी आर 5/2, 1 and 2/5. राइट. और अगर अभी तो मैंने आर ए की जगह 1 और आर की जगह 2/5 डाला है तो ये आया. अगर मैं R की जगह 5/2 डालूंगी तो क्या आएगा उल्टा 2/5. राइट, 1 और 5/2. सो दीज आर योर 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी. आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने ये शॉर्टकट क्यों लिया, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में डायरेक्ट मुझे R और R कट रहा था. अदरवाइज मेरी इक्वेशन थोड़ी लंबी बनती. राइट, सॉल्विंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता. हो तो तब भी जाता सॉल्व अगर मैं ये 3 टर्म्स लेती, बट थोड़ा सा ये ट्रिक हो गई टाइम सेव करने की. राइट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 फॉर यू. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13. अगेन इजी है. A जो है वो 3 है, R जो है वो GP दिया हुआ है 3/3 यानी कि R भी 3 है. हाउ मेनी टर्म्स यानी कि N आर नीडेड फॉर सम कितना है 120. तो सम भी दिया हुआ है तो यूज करिए. 120 इज इक्वल टू A R to the power N minus 1 अपॉन R minus 1. यानी कि 120 इंटू 2 कितना हो गया 120. अच्छा, करने की भी जरूरत नहीं है, 2/3 भी तो आएगा इक्वल्स टू 3 की पावर N minus 1. सो 3 1 3 4. सो यहाँ पे कितना आ गया 80 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 की पावर N. सो 81 को क्या लिख सकते हैं 81 को लिख सकते हैं ना 3 की पावर 4. अब पावर इक्वेट कर लीजिए. N जो है वो किसकी इक्वल आ गया 4 के. आंसर हमें दिख ही रहा है, यानी कि वी नीड 4 टर्म्स सच दैट द सम इज 120. ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी is 16.
सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी, यानी कि ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना गिवन है 16, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो जाएगा ए आर क्यूब प्लस ए आर 4 प्लस ए आर 5 इक्वल्स टू कितना, that is 128. The question says find, determine the first term, the common ratio and the nth term. All right, चेक करिए इसमें से क्या कर सकते हैं. कैन आई टेक ए कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, तो अंदर 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16 रह जाएगा. राइट, just 1 minute, my MacBook power is running low, let me just connect it to the adapter. यस, ऑल राइट. सो ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई. थोड़ा सा मैं इसे इजी वे में सिंप्लीफाई, फिर आगे में भी ए आर की पावर 3 कॉमन आ सकती है. अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 128. अब आपको क्लियरली दिख जाएगा अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं. चेक करिए, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ए और ए कैंसिल, ये पूरा का पूरा कैंसिल. तो और 16 बाय, मतलब कैन आई से आर क्यूब इज इक्वल टू 1 बाय आर क्यूब आ रहा है ना, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 128 बाय 16. 128 बाय 16 कैंसिल करो, 8 आ गया. सो आर क्यूब इज इक्वल टू 2 to the power 3. 8 कैन बी रिटन एज 2 to the power 3. तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई. आर की वैल्यू 3 आ गई, उसको फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन 1. तो क्या आ जाएगा ए 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू कितना 16. सो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर. राइट, सो 9 प्लस 1 10 13. सो ए की वैल्यू कितनी आ गई 16. कैंसिल, आई होप मैंने कैंसिल सही किया है. कैंसिल करके देखूँ ना, 1 मिनट. 2 8 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा, 8 2 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, वाह वाह, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64. So 2 2s are 4 2s are 8. Right. R की वैल्यू 3 आई है. तो दिस इज 9 प्लस 1 10 13. Oh, R cube is 2 cube. So R will be 2 na children. So that is what I was thinking, what mistake I am making. Now don't make my kind of mistakes, okay? So यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा. So 4 plus 2 6 plus 1 7. So the value of A is what 16 by 7. So value of A 16 by 7. Sum to n terms निकालना है, वो क्या होगा A यानी कि 16 by 7, R की पावर n यानी कि 2 की पावर n minus 1 upon R minus 1 यानी कि 2 minus 1. So this is my answer. 2 minus 1 तो 1 ही हो गया. So my answer will be, final answer 16 by 7, 2 की power n minus 1. That's your answer for question number 14. आगे चलते हैं question number 15 पे. Given a GP, A is 729, seventh term means A R to the power 6 is 64. Find sum to 7 terms. ओके, सो ए की जगह पुट कर देते हैं 729, आर की पावर 6 इज इक्वल टू 64. नाउ लेट्स चेक, आर की पावर 6 इज इक्वल टू 64 अपॉन 729. अगेन कैंसिल करिए. अच्छा, कैंसिल तो होगा नहीं, चलो 2 की पावर 6 ठीक है, और 3 की पावर 6. तो आर की पावर 6 is 2 by 3 की पावर 6. अगेन
पावर सेम है तो बेस सेम हो जाएंगे, यानी कि दिस इम्प्लाइज आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई। आर की वैल्यू 2/3 है, ये गिवन है। सम टू 7 टर्म्स हमें निकालना आता ही है। सम टू 7 टर्म्स क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस आर की पावर 2/3 की पावर 6 upon 1 minus 2/3. Why I have used this formula? Because value of r is less than 1, right? So this is your, if you want to solve it further, so 729 3 की power n is what, 7 ना, तो 3 की power 7 minus 2 की power 7 upon 3 में से 2 गया 1, 1/3. So 3 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. So this is 3 की power 6 into 3, that is 3 की power 7 into 3 की power 7 minus 2 की power 7. So you can leave your answer like this. Okay, that is question number 15. 16 करते हैं. Find a GP in which the sum of first two terms मतलब can I say S2 is -4 and sum of fifth term is 4 times the third term. How will you write this? Please, sum of fifth term is 4 times the third term. Term मतलब A, sum मतलब S. तो obviously equation बनाते हैं. A5 मतलब क्या हो गया, A r to the power 4 is equal to 4 A r to the power R3 मतलब R A r square, right children? सो कैंसिल आउट करें, ये और ये कैंसिल, ये वाला और इसके साथ 2 कैंसिल. आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई, +-2. सम टू 2 टर्म्स गिवन था, तो वो यानी कि ए 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर इक्वल्स टू कितना, -4. ए की वैल्यू हमें नहीं पता, आर की वैल्यू आप कुछ भी डाल दो, +2 -2. सो इस केस में राइट पुट आर एस 2. सो कितना आ गया, 4. सो लेट मी फाइंड, ए की वैल्यू कितनी आ गई, -4/3. और अगर मैं आर की जगह -2 पुट करते हैं इस वाले में, तो क्या आएगा, चेक करो, इधर कर लेते हैं. ए 1 - 4 1 + 2 इक्वल्स टू -4. तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी. तो चेक करो, 2 जीपी बनेंगे क्या, कैसे, एक जीपी तो इससे बनेगा, इन दोनों से, लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस एंड दिस, एंड एक जीपी इससे, और आर इक्वल्स टू 2 से बनेगा. सो दैट इज -4/3 -8/3 and -16/3. It is 1 GP, and the other one is 8 - 8 +16 and -32. Right children, I hope मैंने साइन की गड़बड़ ना करी हो. A R, right. All right. आगे करते हैं. 17th question. If the fourth term is x, तो can I say a r की power 3 is x, and 10th term is y, यानी कि a r to the power 9 is y, and 16th term is z, यानी कि a r to the power 15 is z. Then show that, अच्छा प्रूव करना है कि x y z आर इन GP. तो इनका GP होने का मतलब क्या हुआ कि y/x की वैल्यू z/y की इक्वल आनी चाहिए. ट्राई करते हैं. y क्या है, a r की पावर 9, एंड x क्या है, a r की पावर 3. तो सिंप्लीफाई करते हैं. 9 में से 3 गया, यानी कि 6. ये आया LHS, एक चीज़. दूसरा RHS सॉल्व करते हैं. क्या आएगा, z a r की पावर 15 अपॉन a r की पावर 9. अगेन a कैंसिल, r की पावर 15 - 9,
यानी कि कितना बचा 6, तो यस हमारे पास आ गया y बाय एक्स इज इक्वल टू z बाय वाई, देयरफॉर x y and z, sorry, x y and z are in GP. That is क्वेश्चन नंबर 17 फॉर यू. अब इसके आगे थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आज के लिए लॉजिक इतना ही था जो कि थोड़े सिंपल लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे फ्रॉम GP. ऑल राइट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. वेट एंड वॉच.